Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now the next topic is excretion, and at the same time we will discuss clearance also, just to make you understand the difference between excretion and clearance, because uh, at times some students they mix up both the terminologies, excretion and clearance. Now first of all we will go through excretion, and then after that we will go through clearance. Now first of all, excretion. We have already gone through the definition of excretion, as actually it is the removal of the drug or its metabolites from the body through excretory route. At that time, the drug or its metabolites may be active or inactive. All sorts of drugs and their metabolites, they are removed from the body through the excretory organs. From a knowledge physiology and anatomy, we know there are so many excretory routes, including renal, gastrointestinal, inhalational, through milk or saliva or sweat. And obviously the most important, the common one is the kidney and the renal excretory route. Now we know for absorption the main characteristic required were that drug should be lipid soluble and unionized. Now for excretion they should be opposite. Now the drug should be water soluble and ionized. So therefore, when the drugs are their metabolites are coming or reaching to the kidney for excretion, only those drugs and their metabolites are excreted which are ionized and water soluble. Similarly, in the GIT and the lungs, we will go through individually inshallah later on. Now, the factors affecting excretion of the drug, or what are the characteristics which should be a drug or metabolites are having to get excreted. So, as I have said just in the previous slide, that for absorption, the characteristics were the drug should be lipid soluble and unionized. Here, now the first factor should be the drug should be water soluble. So only then it will be able to get excreted. And second is ionization. We have discussed this aspect in metabolism and biotransformation, that during the process of biotransformation, actually, we are transforming the drug molecule from lipid to water and unionized to ionized. So these characteristics are provided by the process of biotransformation, except for the lungs, because through lung, both lipid soluble and water both can be excreted easily. They are absorbed easily and they are excreted easily, because only one single cell layer is there, very thin layer, through which the molecules are passing. So usually there's no need to be having the drug only water soluble. No, here even lipid soluble drug can be excreted easily. Now the other factors which are responsible for the excretion of drugs are all those which we have already discussed during absorption and during distribution, because at all these processes the membranes are same, so the characteristics required to cross the membranes will also be the same. So whether at the site of absorption or distribution or excretion, now again the drug should be of smaller size and small molecular weight, and similarly metabolites also. And the most important example we have given to you is the lithium, as compared to heparin, which is having large size molecule and high molecular weight. Regarding the large surface area for the excretion also, kidney, proximal tubule, distal tubule, connective, a large surface area is available from where the drug can be excreted. And the lungs also, because villi are having so many large size are present there, through any side drugs can be excreted also. Similarly, thinness of the membrane we have already said, like lungs.
and high vascular region are where the blood flow is very high and rapid, obviously kidney and lungs. So these are also adding more and more for the excretion of the drug. And next important last one is the age factor also. Now we know from previous record also, from previous knowledge of physiology, okay, usually after the age of 35, the glomerular filtration rates start decreasing. Although the clinical manifestation may occur much after this age, but practically decrease in GFR starts at the age of 35. And similarly, the renal concentrating capacity also, along with GFR, that is also decreased. So drugs are not so easily eliminated after this age. As the age is advancing, gradually drugs and metabolites obviously will start staying inside the body for longer period, and that may lead to increase the half-life of the drug. And that we have seen in case of renal failure, where the concentrating capability of the kidney is decreased. So half-life of the drugs may increase. So as for the digoxin, half-life may increase up to 54 hours. But as we have discussed with the volume distribution, because in renal failure, volume distribution is also reduced amount of fluids present in the body in case of renal failure. So ultimately, half-life may not increase up to this level. Usually, it may gradually decrease up to the level of 34. Now, diagrammatically, we can see, obviously, upfront part through which the blood flow is going to the glomeruli, and along with that, drug molecule or the metabolites, whether active or inactive, also entering in, and obviously here the filtration occur, and the filtered part of the drug and their molecules are entering the positive tubule first of all, then the loop of Henle descending and the descending loop of Henle, then the distal tubule and the collecting drug, etc. So apart from the filtration, drug molecule can also be entering here through secretion from the blood vessels going along with proximal tubule. Here usually the active form of drug is entering inside the proximal tubule. And opposite will happen from distal tubule. From here, the drugs can be excreted instead of going through the collecting drug and through urine. It can be reabsorbed here from the distal tubule to the blood. So these aspects should also be kept in mind. Now, first of all, renal excretion. Now, renal excretion process actually is consisting of usually three types. First of all, filtration occur as we have seen. Then the secretion as we have seen in the previous diagram also. And the reabsorption also. Drugs may be reabsorbed as we have seen in the distal tubule. That is this blue type of, these are showing the reabsorption of the different types of normally present solutes in the urine. And lastly, obviously from the distal tubule collecting tract especially, the large amount of water is reabsorbed. Now, first of all, go back to filtration. Remember, it's very selective for the drugs also. Not all the drugs are filtered. Only drugs, those which are having smaller size usually, they can easily be filtered. If large size, for example, plasmatoid bonded form, they will not be filtered. So only free drugs, unbound, and second, ionized form especially is filtered at the level of glomerular site. Another important factor which should be present there, that is hydrostatic pressure, should be adequate.
person going into shock will suffer from decreased excretion of the drug molecule also. So in shock, usually filtration is reduced. This is the diagrammatic explanation of the how water soluble and small size free unbound with the plasma parent drug or its metabolites are passing from blood to the tubule. So here we have seen charged glycoproteins also present here. They may separate the capillary endothelium from the tubular epithelium. And especially drugs with the high molecule more than 5,000 will be carried through these carrier glycoprotein. They cannot pass easily at their own. They have to pass these basal membrane through these carrier glycoprotein. Remember, we have seen in physiology 99% of the filtrate present in the tubule will be reabsorbed. So it depends upon the lipid solubility and non-ionization of the drug. Okay, how much drug will stay inside and how much it will be reabsorbed. So if the drug is still lipid soluble and unionized, it will be reabsorbed again. But if the fraction or the percentage has been changed from lipid to water soluble and ionized, that will not be reabsorbed, that will go along with the filtrate and will be excreted. And these changes are seen, as we have seen previously, the drug in acidic medium will be lipid soluble unionized. But if we will change the pH of urine into alkaline, it will become ionized, it will be excreted. And with the basic drugs also, if we want to get it excreted, it should be ionized. And then ionization is achieved by acidifying the urine. So in such environments, both ionized parts are trapped. Trapped means now it cannot be reabsorbed. It will stay inside the filtrate because it has been ionized. It will not be reabsorbed. It is trapped and will go along with the flow of the filtrate outside the body and will be excreted. One of the important example is of warfarin, which is 99% present in the bound form with the plasma protein. Only 1% free. So only 1% will be filtered. Let's go through the examples also. As we have seen, the ionized part of the drugs are trapped, so they cannot be reabsorbed in the urine, so they get excreted. For example, digoxin is ionized, aminoglycosides are ionized, they will not be reabsorbed, they will be excreted along with urine as such. Similarly, trapping of some weak base-like drug, methamphetamine, is one of the example of the basic drug. So in the acidic urine, it will be ionized and that will be excreted in the acidic pH of the urine. So again and again, we are stressing, okay, ionization of the drug molecule is in the urine pH is achieved by, if we want to alkalize the urine for the acidic drug like aspirin, usually we give sodium bicarbonate. Very common alkalization, this drug or the chemical we can say as the common baking powder, baking soda. And if we want to acidify the urine to make excretion for the alkaline drugs, so obviously we give either ammonium chloride or we give vitamin C. They will acidify the urine. Next part is tubular secretion. So it is the most effective active process, energy dependent. So energy based carrier are present here for transport of the drug. And most important example is of penicillin. Now this because it is depending upon the energy, it's carrier based. Here even large size molecule including plasma protein bound drugs
they can also be excreted from this side. Usually it is the proximal tubule, usually second or the third part of the proximal tubule. So common are the transporter P glycoprotein, responsible for the secretion of the glucuronide or the sulfase or glutathione adducts, are ATP dependent, so binding the transport here actually selective for the organic cationic drugs also. So after filtration, second most important is tubular secretion. Now this is the diagrammatic explanation of the secretion. Okay, how the energy dependent this transport system is operating. So obviously it is having a limited capacity only. It cannot be operating like first order elimination. No, it will behave like a zero order elimination on selective one. Or if simultaneously two or more than two drugs are present to get secreted, now competition will start operating. ठीक है, तो बारी बारी वो करेगा, हर एक को साइमल्टेनियसली इकट्ठा नहीं करेगा. तो इसमें फिर एक कंपटीशन की वजह से कुछ ड्रग्स विल स्टार्ट स्टेइंग इनसाइड. ठीक है, तो रिमेंबर इट इज having limited capacity this secretion process. अब एक एप्लीकेशन बताते हैं आपको प्रैक्टिकल. प्रोबेनासेड ये हम पढ़ेंगे, ये यूरिक एसिड कहलाता है. ठीक है, यूरिक एसिड की हम सिक्रेशन बढ़ाते हैं. अब होता क्या है, यूरिक एसिड भी एसिड है और पेनिसिलिन भी एसिडिक ड्रग है. बोथ आर प्रेजेंट at the level of proximal tubule in the circulation, but because it is a selective one, only एक वक्त में, जैसे मैंने कहा, एक ऑपरेट होगा. तो नॉर्मली तो यूरिक एसिड के लिए है, लेकिन अब ड्रग भी वहां पे आ गए, वो भी एक यूरिक एसिड है. सो व्हाट विल हैपन नाउ, अ कंपटीशन विल स्टार्ट. दिस कंपटीशन विल लीड टू कि हम क्या करेंगे, प्रोबेनासेड क्योंकि यूरिक एजेंट है, ये यूरिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ाएगा, पेनिसिलिन को सिक्रेट नहीं होने देगा. सो पेनिसिलिन विल स्टे इनसाइड द ब्लड. इन दिस वे रिजल्ट क्या निकलेगा, ड्यू टू मोर एंड मोर प्रोलॉन्ग स्टे ऑफ पेनिसिलिन मॉलिक्यूल इनसाइड द ब्लड, देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विल बी प्रोलॉन्ग. और कभी कभी हम पेनिसिलिन के एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए प्रोबेनासेड भी साथ दे देते हैं. ठीक है, तो अपने तौर पर यूरिक एजेंट है, इंक्रीजिंग द सिक्रीशन एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द यूरिन. लेकिन रिजल्ट के हवाले से वो क्या करेगा कि पेनिसिलिन को रोक देगा, तो पेनिसिलिन स्टे इनसाइड एंड लीड टू प्रोलॉन्गेशन ऑफ इट्स एक्शन. जो सैलिसाइलेट्स हैं, सैलिसाइलेट्स हम पढ़ेंगे एस्पिरिन लाइक ड्रग्स होंगे ना. ठीक है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव सैलिसाइलेट्स होते हैं. अब ये भी एसिड है. दे विल डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ प्रोबेनासेड इटसेल्फ एंड सल्फेनपाराजोल. ठीक है, तो ये फिर इनकी एक्टिविटी जो है ना, प्रोबेनासेड एंड सल्फेनाजोल की, ये इफेक्ट करेंगे सैलिसाइलेट्स. अब कुछ एग्जांपल है इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो एसिडिक और बेसिक इन नेचर हैं, व्हिच आर एक्टिवली सिक्रेटेड एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूब्यूल. एसिड्स में फ्रोसिमाइड, ये भी पढ़ेंगे हम, डायरेटिक्स में से हैं. ग्लूकुरोनाइड तो हमने पढ़ लिया फेज 2 रिएक्शन में. ग्लाइसिन कंजुगेट्स भी अवेलेबल होते हैं, ये भी आपने पढ़ा फेज 2 रिएक्शन में. इंडोमेथासिन ये भी हम पढ़ेंगे, ये इन आर्थराइटिस एटसेट्रा. ये फैमिली वही है जहां हम एस्पिरिन वगैरह को डिस्कस करेंगे. वहीं पे मेथोट्रेक्सेट ये हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली तो ये एंटी कैंसर ड्रग है, लेकिन और भी इस्तेमाल हैं इसके इम्यूनोसप्रेशन के तौर पे भी. पेनिसिलिन वी ऑलरेडी नो एंटीबैक्टीरियल है. सल्फेट कंजुगेट्स भी फेज 2 रिएक्शन में पढ़ा. थायजाइड डायरेटिक्स जैसे लिखा हुआ है डायरेटिक्स है ये भी. यूरिक एसिड हमें ऑलरेडी पता कि नॉर्मली प्रेजेंट सब्सटेंस इन द बॉडी है. ठीक है, जब हमने ये प्योरिन पिरिमिडिन जो है मेटाबॉलिज्म पढ़े, तो साथ ही हमने यूरिक एसिड के प्रोडक्शन भी पढ़ी थी. ये सारी एसिडिक नेचर है. अल्कलाइन में अमिलोराइड, ये भी हम पढ़ेंगे जब ये डायरेटिक्स वगैरह को पढ़ेंगे. डोपामीन का लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, हिस्टामिन का पढ़ा हुआ है, इमेपाक्रीन, मॉर्फिन का पढ़ा हुआ है, प्रोबेनासेड ऑलरेडी, क्योनिन का भी पढ़ा हुआ है, सेरोटोनिन,
ट्राइमथैलिन, ये भी पढ़ेंगे आप डायबिटिक्स वगैरह में, खैर नहीं हो। ये जस्ट एक लिस्ट है लंबी जो एसिडिक और बेसिक ड्रग्स हैं, जब वो पहुंचे प्रोजेंटेब्यूल पर अकॉर्डिंगली माहौल के हवाले से इनकी सिक्रेशन कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा हो जाएगी। Now the third part is the tubular reabsorption. Now reabsorption, obviously it's an absorption. So again the drug or the metabolites must be lipid soluble and unionized, and only then they will be absorbed. ठीक है, बिकॉज ये जो शुरू की एब्जॉर्प्शन थी वो और थी, ये एब्जॉर्प्शन तो एक्सक्रीशन के बाद हो रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द यूरिन, हमने पढ़ा हुआ है कि एसिडिक ड्रग इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन ड्रग इन अल्कलाइन मीडियम आर अनआयनाइज्ड एंड सो लिपिड सॉल्युबल एंड विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड। तो कुछ वहां पे मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्टर भी मौजूद है, वो ट्रांसपोर्टर दे आर मेनली लोकेटेड इन द डिस्टल reticules and they are actually responsible for any type of active reabsorption also. तो पैसिव ना हो पाए, बकिया पार्ट जो होता है वहां से उनको एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं बैक इनटू द सिस्टम सर्कुलेशन। ठीक है, तो दो चीजें रीअब्जॉर्प्शन के लिए हो गई, एक पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव। पैसिव तो सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होंगे फ्रॉम हायर टू लोअर, उस वक्त हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल है और लोअर है ब्लड में, वो ब्लड तक चली जाएगी। लेकिन एक एक्टिव पार्ट है, वो अगेंस्ट ग्रेडियंट भी जा सकती है, वो ट्रांसपोर्टर के जरिए जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कुछ रिलेशनशिप ऑफ पीएच एंड पीकेए। याद रखिए, हमें पता है कि व्हेन द पीएच एंड पीके इज इक्वल, उसका मतलब कि 50% ड्रग्स होगी आयनाइज्ड होगी, 50% अनआयनाइज्ड होगी। तो यहां पे एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कि जितनी एक्सक्रीट हो रही है उसमें से 50% रीअब्जॉर्ब हो, क्योंकि यहां पे पीएच और पीके ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर स्लाइटली पीकेए इज मोर अल्कलाइन 7.5, ठीक है, तो हम यह देखेंगे कि अब जो ड्रग होगी, खास तौर पे अगर एसिडिक ड्रग है, तो वो आहिस्ता से वो आयनाइज फ्रैक्शन मिलेगी हमें। ठीक है, तो अनआयनाइज कम रह जाएगी, तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक्सक्रीशन ज़्यादा है, रीअब्जॉर्प्शन कम है। एक और उलट तब्दील कर लीजिए कि पीकेए को पीएच के मुकाबले में मोर एसिडिफाई कर दें। ठीक है, तो एसिडिक ड्रग अगर होगी तो एसिड ड्रग, एसिड मीडियम, मोर अनआयनाइज, तो अनआयनाइज फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब एक्सक्रीशन कम हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल को दोबारा गौर से सुन लीजिएगा ताकि पूरी तरह कंसेप्ट बन जाए कि होम टेक मैसेज इन तमाम डिस्कशन का क्या है कि इफ सिमिलर पीएच है, ठीक है, तो ड्रग इज अनआयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अपोजिट पीएच है तो आयनाइजेशन हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल एक्सक्रीटेबल हो जाएगी। और साथ रिलेशनशिप पीके पीएच की ऑलरेडी पे पता है कि अगर दोनों एक ही लेवल पर हैं, पीके पीके एक जैसे हैं, तो 50% अनआयनाइज्ड वो लिपिड सॉल्युबल रीअब्जॉर्ब, 50% आयनाइज्ड वो वाटर सॉल्युबल है, एक्सक्रीशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन साथ साथ रखिए ध्यान में भी कि ऑब्वियसली साथ साथ इक्विलिब्रियम चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये क्योंकि कांस्टेंट एक प्रोसेस चल रहा है, साथ साथ मूवमेंट चलती जा रही है फिल्ट्रेट की, मॉलिक्यूल भी साथ साथ चलते जा रहे हैं, बीच लम्हा बलमा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। ठीक है ना, सब चीज़ें चलते चलते कभी जो है रीअब्जॉर्प्शन वाली चीज़ ज़्यादा होती है कभी, लेकिन नेट रिजल्ट जो हम बता रहे हैं वो वही होगा कि जैसे हम इन स्लाइड में डिस्कशन की। अब आइए जीआईटी एक्सक्रीशन पर। हमें पता है कि जीआईटी स्टार्ट फ्रॉम दी ओरल कैविटी, तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले। तो बहुत से केमिकल या ड्रग्स ऐसे हैं जो सलाइवा में सीक्रेट होते हैं, उसमें आयोडाइन बड़े कॉमन है, इस वजह से उनके इफेक्ट्स ऑन द गम्स वगैरह बड़े कॉमन है, टॉक्सिक इफेक्ट्स में। रिफेम्पिसिन ये एंटी ट्यूबरकुलर है, एस्प्रिन लाइक एसिडिक ड्रग्स भी, ये भी सीक्रेट होती हैं सलाइवा। बाइल में से भी
बहुत से ड्रग्स हैं कंजुगेटेड फॉर्म में यूजुअली, ठीक है, और दे मे बी स्टिल एक्टिव एबल टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, लेकिन वो बाइल में सीक्रेट बाइल कहाँ जाता है? थ्रू कॉमन बाइल डक्ट इन दी ड्यूटेनम। सो एम्पिसिलिन, ये पेनिसिलिन डेरिवेटिव, रिफेम्पिसिन हमने अभी बताया एंटी ट्यूबरकुलर है। सो अगर हमने देख रहे हैं एंटी बैक्टीरियल देने हैं ऐसी जगह पे कि इन्फेक्शन ही मौजूद है इन दी गॉल ब्लैडर और बिली इन्फेक्शन मौजूद है, और टाइफाइड पढ़ेंगे आप, टाइफाइड कैरियर जो होते हैं, क्या होता है कि टाइफाइड में इनके जो जर्म्स हैं वो इनके गॉल ब्लैडर के अंदर रिजाइड करते हैं, वहीं से बार बार आके रीइंफेक्शन काज करते हैं। तो कभी कभी हमारी कोशिश होती है कि वहाँ पे कोई ऐसी ड्रग भेजी जाए जिससे वहाँ वाले टाइफाइड के जरासीम जो है, जो जर्म्स हैं, वो किल हो जाए। तो तब तो हमारे खुद शायद, और हमें पता है कि इनकी सिकेजन होती है, तो हम पे दे देते हैं कि इनकी लामहला सिकेजन बाइल में होनी है, बाइल ने जाना है गॉल ब्लैडर में, और वहाँ इन्फेक्शन मौजूद है, उनको इफेक्ट करेंगे। तो हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं इस रूट को, रूट ऑफ एक्सक्रीशन को, फॉर आवर जो है पर्टिकुलर पर्पज। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत सी चीजें सिक्रीट होकर एक्सक्रीट हो जाती हैं, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ा था, ये भी एंटीबैक्टीरियल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये माइनिकोलिक एसिड ग्रुप में है, ये भी एंटीबैक्टीरियल है। फिर थ्रू स्किन सिमेटिक, उसके थ्रू भी, फिर थ्रू लंग्स, ये रिफेम्पिसिन फिर नाम आ गया, विटामिन B1, ठीक है। देन लंग्स के थ्रू जो है एक्सेल करके बहुत सी गैसेज और वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट हम लेते भी जरूर से, निकालते भी जरूर से, ठीक है ना। इस तरह कुछ और भी ड्रग्स पड़ेंगे, पायरल्डिहाइड वगैरह है, उनकी भी इस तरह, एल्कोहल उसकी भी थ्रू लंग्स होती है। तो एग्जाम्पल आप आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। GIT और अदर जो है वो इसमें शामिल है। जैसे मैं बिल स्टिक में कहा कि मॉलिक्यूल का वेट अगर ओनली लेस देन 600 है, वो ज़्यादातर इसमें सीक्रेट होती हैं। एरिथ्रोमाइसिन पढ़ेंगे, ठीक है, ये ग्रुप खास ग्रुप एंटीबैक्टीरियल। रिफेम्पिन, रिफेम्पिसिन एक ही चीज़ है, एम्पिसिलिन भी लफ्ज़, टेट्रासाइक्लिन ये लफ्ज़ आपने सुन लिया। ओरल कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव मीन्स ड्रग्स विच आर यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है ना, वो ओरली हम टैबलेट खाते हैं, खवातीन खाती हैं अमूमन, ठीक है। सो ये अमूमन फिर बाइल में सीक्रेट होती हैं, बाइल लेके फिर ड्यूटेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में यूजुअली नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा मौजूद होता है जो बहुत सी चीज़ें बना रहा है, इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम, ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेटेड फॉर्म में आ रहे होते हैं फेज 2 रिएक्शन के थ्रू सारे के साथ ड्रग्स। लेकिन जब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं जो एंजाइम बना रहे हैं, वो एंजाइम दोबारा इन सबको अनकंजुगेट कर देता है। हमने फेज 2 रिएक्शन में पढ़ा था कि कंजुगेशन में एक्चुअली सारे के सारे आयनाइज हो चुके होते हैं, क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ने फेज 2 में सबको आयनाइज कर दिया था, वाटर सॉल्युबल कर दिया था, एक्सक्यूटेबल बना दिया था। लेकिन जब लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ये दोबारा अनकंजुगेट हो गए, ये दोबारा अनआयनाइज्ड हो गए, लिपिड सॉल्युबल हो गए, they can be again reabsorbed from the large intestine। तो एब्जॉर्ब होके फिर ये पोर्टल सर्कुलेशन के लिवर पे चले जाए, इसलिए एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है एंटेरोहेपेटिक साइकिल, ठीक है। ये पहले लिवर से थ्रू बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में आए कंजुगेटेड फॉर्म में, फिर अनकंजुगेशन हो गई ड्यू टू एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एब्जॉर्बेबल हो गए, रिलीज होके फिर थ्रू पोर्टल लिवर में। तो एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग या रिसर्कुलेशन, ये अल्फाज दोनों इस्तेमाल होते हैं। इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन में कुछ मखसूस परगेटिव जो परगेट करते हैं, कांस्टिपेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सैना और कैस्करा, ये सैना जिसे आजकल बात कर सैना मक्खी भी कहते हैं ना, बाद लोग इस्तेमाल होता है कोरोना शोना में, ठीक है। ये सैना लीव्स, तो इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये अमूमन पहले एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे आर कन्वर्टेड टू एक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो एक्सक्रीट होते हैं इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वो इरिटेंट होते हैं, वो इरिटेट करते रहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को, और जब भी वो इरिटेट करते हैं
उसकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन की। मोटिलिटी बढ़ जाएगी, अब वहाँ पे वाटर मेनली एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर को कम टाइम मिलता है फिर एब्जॉर्ब होने का, इसलिए फिर ज़्यादा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है फिर, तो अमूमन फिर उसे डायरिया डेवलप होता है, दे प्रोड्यूस परकेशन। Few of the heavy metals are also excreted, lead है, आर्सेनिक है, आयरन है, ठीक है, ये फिर उसी तरह इंटेस्टाइन में फीसिस के थ्रू, ठीक, पहले बाइल में, बाइल के साथ बाद में फीसिस के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। लंग्स के थ्रू मैंने ऑलरेडी बात कर दी, बहुत से वोलेटाइल जनरल स्टैटिक एजेंट्स हैं, हेलोथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है गैस, ये इनहेलेशन भी हो रही है, इससे रूस है, लेकिन फिलहाल एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सक्रीशन भी थ्रू इसी रूट हो रही है, थ्रू लंग्स। पाराल्डिहाइड का मैंने नाम लिया, ये भी अगरचे इंट्रावेनसली देते हैं, लेकिन अप टू 80% इसके मेटाबोलाइट्स जो लिवर में बन रहे हैं वो फिर सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स के पास जाते हैं, तो लंग्स के थ्रू दे आर एक्सहेल्ड फ्रॉम द बॉडी, तो जो रिमेनिंग 20% अगर वो फिर यूरिन में भी चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका मसला क्या होगा कि अगर हेपेटिक फेलियर हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा तादाद जो होगी वो फिर थ्रू लंग्स ही जाएगी, ठीक है। एल्कोहल के मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दी, थ्रू लंग्स, किडनी में थ्रू भी होती है, लेकिन लंग्स थ्रू बहुत होती है, इसीलिए जो एल्कोहल इंटेक करने वाले लोग हैं उनकी सांस में से स्मेल आ रही होती है, क्योंकि वो एक्सहेल कर रही है उसमें से। मिल्क के थ्रू, ठीक है, अगेन यहाँ पे सिर्फ वो टिकट होगी जो लिपिड सॉल्युबल है, फ्री है, अनआयोनाइज्ड वगैरह ड्रग्स हैं, वो सीक्रेट होंगी इनटू द मिल्क, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड साइट भी बन जाती है और वहीं से सीक्रेट हो जाते हैं, सीक्रेट होते हैं मिल्क में, और फिर मिल्क के थ्रू बेबी ले सकता है, लाइक टेट्रासाइक्लिन, आइसोनाइजिड, पहले भी नाम लिया था, ये आइसोनाइजिड एब्रीविएशन में INH, ये भी एंटी ट्यूबरकुलर है। डायज़ीपैम पहले भी नाम लिया था हमने, जब बारबिचरेट्स पढ़े थे तो उनके हमसाय में ग्रुप है बेंजोडायज़ेपिन, उसमें से डायज़ीपैम वेलिम के नाम से, फॉर एक्टिंग एज ए सेडेटिव और हिप्नोटिक। ओपियाइड्स ऑलरेडी हमें पता है, मॉर्फिन लाइक ड्रग्स, पेनिसिलिन का जिक्र हो गया, क्लोरफेनिकोल एंटीबैक्टीरियल है, एंटी कैंसर, तो ये बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं, ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स विच आर सीक्रेटेड इनटू द मिल्क एंड दे कैन बी सीक्रेटेड थ्रू मिल्क आल्सो, और बेबी इसको ले सकता है, और डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी कुछ इफेक्ट्स बेबी में भी डेवलप हो सकते हैं, जो जो इफेक्ट्स होंगे इनके, अच्छे या बुरे। स्किन की हमने बात की थी, थ्रू स्वेट, मर्करी, आर्सेनिक वगैरह, सलाइवा की बात भी की थी, रिफेम्पिन, लिथियम के और पोटेशियम आयोडाइड, ये हम जब एंटी थायराइड वगैरह पढ़ेंगे ना तब इनका जिक्र आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे हम एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ठीक है, आफ्टर दिस ब्रेक वी विल अगेन कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।